Hello friends, myself Shivam Kumar Tiwari. I have done my graduation from BSc Honours in Zoology from BRAB University, Muzaffarpur. Since 4 years, I have mentoring many foundation and NTSC students for biology, and many of them were securing good ranks in NTSC, and many of them were securing good marks in biology in boards exam. And now I am teaching cell. So let's start our topic, cell, the basic unit of the life. So friends, first of all we see overview of cell. Second one, parts of cell. And third one, uses of cell. So let's start our topic, cell. तो साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जब भी हम बात सेल की करते हैं तो वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. And what is the meaning of the basic and fundamental unit of our life? Then when we can say that the basic and fundamental unit of our life, first of all we give an example of a building. First when we talk about building, अगर मैं एक बिल्डिंग की बात करता हूं तो बिल्डिंग एक एक ईंट को जोड़ के हम लोग सबसे पहले एक वॉल बनाते हैं, और जब बहुत सारी वॉलें आपस में जुड़ती हैं तो वो एक रूम बनाती हैं, और जब रूम को एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, जब उसी रूम को एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है तब जाके बनता है फ्लोर, और अलग अलग फ्लोर बनता है, एक के ऊपर एक अगर फ्लोर को बनाते हैं तब बनता है हमारा बिल्डिंग. साथियों, सेम इसी तरह से हमारे बॉडी का भी कंसेप्ट है. हमारा बॉडी एक एक सेल से मिलकर हमारे बॉडी के अंदर पहले बनते हैं हमारे अंदर टिश्यू, और जब टिश्यूज के ग्रुप एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स. ये ऑर्गन एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और ये ऑर्गन इंटरनल भी हो सकते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आपस में मिलते हैं तब बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो वो बनाता है हमारा बॉडी. तो साथियों, वी कैन से दैट द सेल इज द फंडामेंटल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. यानी हमारी जीवन की शुरुआत, हमारे लाइफ का मेन फंडामेंटल यूनिट जो है वो कहां से शुरू होता है? वो सेल से शुरू होता है. तो वी कैन से दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. फ्रेंड्स, इन द ईयर 1665, a British scientist, in the year 1665, a British scientist, the name was Robert Hooke. The name was Robert Hooke. British scientist Robert Hooke firstly explained about cell, and he gave his experimental conclusion on cork cell. And he said that the cork cell have a little compartmental structure, and in a Latin word we can say the little compartmental structure to cellula, and this cellula referred to as a cell, and this is the main fundamental of the discovery of the cell. This is the main fundamental of the discovery of the cell. So Robert Hooke in 1665 that he concluded that the cell is form a little compartmental structure. So let's move, and when the time is passed away, and that the time was 1674. 1674, a famous scientist, the name was A.V. Leeuwenhoek, Antony van Leeuwenhoek. He is also known as the father of microbiology because he discovered about bacteria, and firstly he explained about the bacteria. ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में आइडिया दिया, और इन्हीं के नाम ये भी पेटेंट है कि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल के बारे में आइडिया दिया था. सो नेक्स्ट we have discussed about the cell theory, how we can proceed that the organism are composed of the cell. So in the year 1838 and in the year 1839, two different scientists, first one is British zoologist and second one is German botanist. The German botanist Matthias Selden and British zoologist Theodor Swan. Matthias Selden and Theodor Swan further come and say that Matthias Selden said that all the plants are composed of cell and the components of the cell. Matthias Selden said that all the plants are made up of cell and the components of the cell.
and the Theodor Swan was said that all the animals are composed of cell and the derivatives of the cell, and these further combine these two theories, and we can say that these two theories are also known as the cell theory. So the concept of the cell theory was given by firstly in 1838 and 1839 by Matthias Silden and Theodor Swan. So guys, challenge is that the Matthias Silden and Theodor Swan cannot explain the existence of the cell. So in the year 1855, a scientist that name was Rodolphe Virchow come and say that the Greek word omni cellula e celluli, that means all the cells are arise from pre-existing of its own cell, यानी जितने भी सेल्स होते हैं अपने ही सेल के सेल डिवीजन या रेप्लिकेशन या उन्हीं से, मतलब अपने ही पिछले सेल से ही वो आते हैं. इन्होंने रोडोल्फ विर्चो ने इसको कंक्लूड किया कितना में 1855 में. तो सेल थियरी का ड्रॉबैक अगर आता है तो सेल थियरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो सेल के एग्जिस्टेंस को नहीं समझा पाया, यानी मैथियस सिल्डन और थियोडर स्वान सेल के एग्जिस्टेंस को नहीं समझा पाए. चलिए साथियों, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं साथियों सेल के बारे में, तो सेल के ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेल के टू टाइप्स होते हैं, यानी सेल के भी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को टू टाइप में रखा गया. फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर. Multicellular. First one is unicellular and second one is multicellular. The organism that's made up of only one cell is known as unicellular, but the organism that is made up of more than one cell is known as multicellular organism. So there is no complexity between unicellular and multicellular. Single cell animal is known as unicellular, and the organism that is made up of more than one cell, that is known as multicellular organism. So next we conclude that this is on the basis of the cellular structure and on the basis of nucleus and on the basis of cell organelles structure. How many types of organism? So on the basis of cell organelles structure, organism are two types. First one is prokaryotes, and second one is eukaryotes. Firstly, we can see that what is prokaryotes and what is eukaryotes. So when we talk about prokaryotes, then pro means primitive and the pro means pre, yani the things that cannot change rapidly since when they were viable. यानी प्रो का मतलब होता है कि जो कि पुराने अंदाज में, यानी इन्होंने अपने अंदर चेंजेस किए ही नहीं, यानी इवोल्यूशन के साथ साथ ये बदले ही नहीं, उनको प्रो कहते हैं. प्रो प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव पुराने, ठीक है. प्रो कैरियोट्स, द साइंस में कैरियोट वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वैसे सेल जिनके न्यूक्लियस पुराने मॉडल पे पुराने बेसिस पे हैं, यानी उनके अंदर अगर मैं सिंपली प्रोकैरियोट्स आप लोग के लिए अगर बनाऊं तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ पहले कंडेंस डीएनए होता है, देन इधर राइबोसोम फ्लैजिला होता है, सीलिया इनके ऊपर कंपल्सरी है कि सीलिया होगा ही होगा. इनके अंदर और भी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, अच्छा साथियों, इनके अंदर गोल्जी बॉडी भी नहीं होता है, यानी ये न्यूक्लियस जो होता है ना मूवेबल न्यूक्लियस होता है. सिंगल स्ट्रक्चरल डीएनए पाया जाता है जो कि कंडेंस रूप में खुद में कंडेंस होकर एक साइड में इनके सेलुलर स्ट्रक्चर के में कहीं ना कहीं एम्बेडेड होता है या घूमता रहता है. अगर बात करें तो ये हमारा राइबोसोम है, ये इनका फ्लैजिला है जो इनको मूवमेंट में हेल्प करता है, ये इनका सीलिया है, ये इनके अंदर सेल वॉल है, मेनली सेल वॉल इनके पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं, ये इनका सेल मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है,
और ये डीएनए जो होते हैं इनके अंदर जो सिंगल सेलुलर डीएनए सिंगल सेल के ही होते हैं और डीएनए होते हैं वो सिंगल हेलिकल होते हैं और ये घूमते रहते हैं। चूंकि इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर में साइटोसोल लिक्विड भरा हुआ है साइटोसोल, तो साइटोसोल के अंदर में ये घूमते रहते हैं। तो ये सिंपलर स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोकैरियोट्स का, यानी इनके अंदर जो है डीएनए के अंदर कोई खास कॉम्प्लेक्सिबिलिटी चेंज नहीं होती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक, आप यूकैरियोटिक के अंदर भी आप दोनों चेंजेस देख सकते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग है और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग है। अभी मैं आप लोगों को कंक्लूड करता हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर के बारे में। अभी मैं आप लोगों के सामने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को कंक्लूड कर देता हूं, जो कि समझने में एकदम आसानी होगी उसको। साथियों, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो इसके अंदर पैक्ड न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, यानी ये होगा इनका सेल वॉल जो कि काफी रिजिड होता है, और ये होगा इनका सेल मेम्ब्रेन। साथियों, खेल जो है ना सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे नहीं है, खेल इनके न्यूक्लियस पे होता है। इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, इनके अंदर जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। किसके अंदर, तो ये अगर मैं बात करूं तो रफ व्यू ऑफ प्लांट सेल की बात कर रहा हूं मैं। इनके अंदर सेल वॉल भी पाया जाता है और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और यहीं धड़ल्ले से अगर मैं एनिमल सेल की बात कर लूं तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है इनका, सेल मेम्ब्रेन, इनके अंदर सेल वॉल ऑब्सेंट होता है। ये इनका गोल्जी एपैरेटस, ये इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखिए, अगर सेल के अंदर में आपको कहीं भी फोल्डेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई दे तो वो आप कंक्लूड कीजिएगा कि वो सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा। इसके दो टाइप होते हैं, मैं अभी समझाऊंगा। ये इसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, यानी ये कंप्लीट सेल एनवेलप होता है। और अगर मैं बात करूं सेल एनवेलप की और सेल के अंदर के और भी सारे सेल ऑर्गेनेलिस की, तो इनके अंदर इधर में मैं बात कर सकता हूं राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये एनिमल सेल है साथियों, एनिमल सेल का ये रफ व्यू है। तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इनके अंदर गोल्जी एपैरेटस भी होता है, इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस जो होता है इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये नहीं, यानी जो है इनका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। इस बात को कंक्लूड किया जाए कि इनका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा। एंड अगर मैं बात करूं, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है इनका मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये जो होता है ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है, यानी जैसे मान लीजिए एक ही रचना है, एक ही संरचना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोग को अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बात, ये मेरे पास एक पेपर है,
ये मेरे पास एक पेपर है, और अगर मैं चाहूं तो इस बाइलेयर का मतलब क्या होता है इससे आप लोग कंक्लूड कीजिएगा। ये एक ही लेयर को, इस एक ही लेयर को मैंने 2 बार फोल्ड कर दिया तो ये बन गया बाइलेयर, यानी इसके अंदर 2 लेयर हो गए, लेकिन है मेम्ब्रेन एक ही, तो ये लिपिड बाइलेयर होता है। लिपिड का एक लंबा सा ही लेयर होता है जो 2 बार फोल्ड हो गया रहता है, इसीलिए इसको लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ये प्लाज्मोलाइसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये इसके अंदर कोई भी चीज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू कोई चीज एंटर कराने के लिए भी प्लांट सेल के अंदर में ये रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन? इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है। अब बात करते हैं साथियों इसके सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। तो सेल ऑर्गेनेलिस की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल ऑर्गेनेलिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ER की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम अटैच होते हैं, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और प्रोटीन सिंथेसिस करके गोल्जी बॉडी के पास में रख देना। गोल्जी बॉडी उसको अपने हिसाब से देख लेता है। चूंकि गोल्जी बॉडी की अगर मैं बात करूंगा, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, तो उसके अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो पहले मैं देखता हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम अटैच होंगे और उनका काम होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस करना। दूसरा एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना। ये लिपिड सिंथेसाइज करता है सेल के अंदर में, और सेल के अंदर में लिपिड की कमी नहीं हो इसको देखने का काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। साथियों अब नेक्स्ट बात करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस की। इसको सबसे पहले खोजा था कैमिलो गोल्जी ने, और कैमिलो गोल्जी ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। ये जो होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर में, जो कि स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमसे मिसलीड हो रहा है, यहीं पे इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर लाइसोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये लाइसोलाइटिक एंजाइम जो है सेल के अंदर, सेल को फेगोसाइटोसिस, इसका डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। सेल के अंदर कोई एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स एंटर न करे, या फॉरेन चीज एंटर कर रहा है तो उसका डाइजेशन करना है, इसके लिए जो है ये लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। इन केस अगर इसको उस टाइप का, अगर फेगोसाइटोसिस करने के लिए उस टाइप का मीडियम नहीं मिलता है, तो कभी कभी क्या करता है ये अपने ही सेल के इंटरनल इंटरमीडिएट को खाना शुरू कर देता है, और जब ये अपने ही सेल के इंटरमीडिएट को खाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे इसके लाइसोलाइटिक एंजाइम का लेवल बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये खुद को ब्लास्ट कर लेगा, और खुद को ब्लास्ट करके सेल को ही खत्म कर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये रहा कंक्लूजन आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का। अब बात करते हैं यूजेज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस, जो मैंने लास्ट टॉपिक लिखा था। पार्ट्स ऑफ सेल मैंने देख लिया, ओवरव्यू देख लिया। यूजेज ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस, तो यूजेज सेल ऑर्गेनेलिस का मेन यूज अगर मैं बात करूं तो सेल ऑर्गेनेलिस का मेन यूज होता है सेल को सपोर्ट करना, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सेल को सेल के अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, इसेंशियल फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, इसको देखने का। अब टोटल मैं बात कंक्लूड कर देता हूं। सेल इज द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। फर्स्टली सेल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया। 1674 में सेल के बारे में, लिविंग सेल के बारे में सबसे पहला आइडिया लेविनहॉक ने दिया। सेल थ्योरी 1838 एंड 1839 में मैथियस हिल्डेन और थियोडर स्वान ने दिया। उसको करेक्ट किया 1855 में रोडोल्फ विर्चो ने। उसके बाद मैंने देखा सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, सिंगल सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट हम we see that there are different types of cell on the basis of cellular structure, यानी सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी सेल के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें हमने देखा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स वी डिस्कस अबाउट देयर इज नो true nucleus is present, and only condensed DNA is in the form of the cytosol, and it is floating, and then we can see that there is cilia and flagella present on the prokaryotic cell. Then after we can see that eukaryotic cell, and we discuss about plant cell and animal cell and the various cell organelles and the usage of cell organelles. Thank you. Hopefully this video is helpful for you.